हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करके। और आज जिस टॉपिक के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। इसके अलावा हमारे और भी कुछ कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर के लिए, जो है मिनी कॉम्बो पैक, कंप्लीट कॉम्बो पैक, और इसके साथ साथ पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के भी कुछ कोर्सेज हैं जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस एमसीक्यूज हैं, ऑल यूनिट्स वीडियो कोर्स, ऑल कोर्सेज कॉम्बो एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियोस। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 के सारे कोर्सेज का कॉम्बो भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। So now let's have a look at question number 1. Question 1 says, identify the incorrect statement with respect to the role of HR managers. तो HR managers के रोल को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Statement 1 is playing the role of a peacemaker during disputes and conflicts between individuals and groups or management. Second statement says consultations to employees about marital, health, mental, physical and career problems. Third statement is HR managers are not concerned with labor management relations. They are just concerned about the work and how to get it done. Fourth statement is reminding moral and ethical obligations to employees. तो अब इस क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको इन कोड्स में से कोई एक ऑप्शन अपना आंसर मार्क करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को और स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और इनमें से कोई एक कोड मार्क करके अपना आंसर दीजिए। So now let's have a look at the answer to question number 1. So the correct answer is code D, which says only third statement is incorrect. So now let's have a look at the third statement. The third statement says HR managers are not concerned with labor management relations and they are just concerned about the work and how to get it done. लेकिन अगर हम HR managers के roles discuss करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला role given है management of manpower resources, which says that HR managers are broadly concerned with leadership, both in the group and individual relations and labor management relations. Hence, third statement is incorrect. इसके अलावा कुछ और भी रोल्स हैं HR मैनेजर्स के जो है ह्यूमैनिटेरियन रोल्स, दैट इज दे रिमाइंड मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस टू एम्प्लॉयज़। दे ऑल्सो वर्क एज काउंसलर्स और वो एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट करते हैं रिगार्डिंग देयर हेल्थ, मेंटल, फिजिकल और करियर प्रॉब्लम्स। They also work as mediators, playing the role of a peacemaker during disputes or conflicts. They also work as spokesperson and represent the company in media and other forums because they have a better overall picture of company's operations. They also work as problem solvers and change agents. So now let's have a look at question number 2. Question number 2 says, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion says recruitment is called a positive process, and the reason to the statement which is given is it helps in comparing the different candidates in terms of capabilities, knowledge, skills, experience, work attitude, etc., which gives a positive result in the organization. In the light of above statements, choose the correct option. Option A says both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B says both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C says A is true but R is false, and option D says A is false but R is true. ऐसे कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कोड इसका सही आंसर होगा। So now let's have a look at the correct answer to question number 2. So the correct answer is option C, which says A is true, यानी कि assertion में जो हमें statement given है वो सही है, but R is false, लेकिन जो reason में हमें statement given है वो एकदम गलत है।
देखो, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि इस अप्रोच में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब है उसके लिए हम मैक्सिमम पॉसिबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, और उसका रीज़न भी हमें यहाँ पर गिवन है विद इट्स अप्रोच ऑफ अट्रैक्टिंग एज मेनी कैंडिडेट्स एज पॉसिबल फॉर द वैकेंट जॉब्स। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि रिक्रूटमेंट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द डिफरेंट कैंडिडेट्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, तो उस हिसाब से तो हमें सिर्फ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना है, तभी तो ये पॉजिटिव प्रोसेस होगा। अगर हम डिफरेंट कैंडिडेट्स में से उनकी कैपेबिलिटीज़, नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी को चूज़ करेंगे और किसी को रिजेक्ट कर देंगे, तब तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये स्टेटमेंट रिक्रूटमेंट की नहीं बल्कि सिलेक्शन की है। Selection is defined as the process of choosing the right candidates for the vacant positions. It is called as a negative process with its elimination or rejection of as many candidates as possible for identifying the right candidate for the position. So now let's move on to the question number 3. Question number 3 says, arrange the following steps in the process of selection in their correct order. तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हमें गिवन है और हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रिसीविंग एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस, चेकिंग रेफरेंसेस, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप क्वेश्चन को और इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। So now let's discuss the correct answer of question number 3. So the correct answer is option B. तो आइए देखते हैं कि कैसे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे हमारे पास सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ये स्टेप इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इस स्टेप को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप से देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है रिसीविंग एप्लीकेशंस। तो वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है रिसीविंग एप्लीकेशंस, और ये रहा फर्स्ट, तो ये यहाँ पे एकदम सही है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, सो सेकेंड वुड बी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जो क्वेश्चन में हमें 6th नंबर पे गिवन है, सो हियर वी हैव एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसके बाद आता है इंटरव्यू, सो हियर वी हैव एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू विच इज़ ऑन 4th नंबर। इसके बाद आता है रेफरेंस चेकिंग, सो हियर ऑन 3rd नंबर वी हैव चेकिंग रेफरेंसेस। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन विच इज़ ऑन 5th नंबर इन आवर क्वेश्चन, एंड देन वी हैव फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर विच इज़ ऑन नंबर 7. So option B is the correct answer. So now let's proceed and discuss about the next question, question number 4, which says what is the purpose of conducting employment interviews. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जब हम employment interviews conduct करते हैं तो उसके पीछे हमारा क्या पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है और हमें इनमें से एक आंसर मार्क करना है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल रीज़न होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का। ऑप्शन ए सेज employment interviews are done so as to identify a candidate's skill set and ability to work in an organization in detail. Option B says purpose of an employment interview is to find out the suitability of the candidate and to give him an idea about the work profile and what is expected of the potential employee. Option C says the employment interview is critical for the selection of the right people for the right jobs. And option D says all of the above. तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। So the right answer to question number 4 is option D, which says all of the above. यानी जो 3 statements हमारे पास क्वेश्चन में थी, all of them are correct and they describe the purpose of conducting employment interviews. तो इन तीनों statements को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू से हमें कैंडिडेट्स की स्किल्स और एबिलिटी का पता लगता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू से हमें ये भी पता लगता है कि कौन सा एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, और इसके साथ साथ हम एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं और उसे ये बता सकते हैं कि हम उसकी जॉब से, उसके रोल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं।
and it is also critical for the selection of right people for the right jobs. So all the three statements are correct, hence option D, all of the above is the right answer. So now let's discuss question number 5. Question number 5 says identify the incorrect statements. तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इन कोड्स को फॉलो करना है. और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स. It increases the skills and knowledge base of the employees. Second statement is increases the need to constantly supervise and overlook the employees. Third is trained employees are highly efficient in comparison to the untrained ones. And fourth statement says training helps to identify the highly skilled and talented employees and the company can give them jobs of higher responsibility. तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा कोड इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए. So let's have a look at the correct answer of question number 5. So the correct answer is option B, which says only second statement is incorrect and first, third and fourth statements are correct. So for answer, let's have a look at benefits of training. Training improves the quantity and quality of workforce. It improves upon the time and money required to reach the company's goals. Definitely जब आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे तो आप कम पैसा और कम टाइम खर्च करके कंपनी के गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं. ट्रेनिंग से हमें ये भी पता लगता है कि कौन सा एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड और टैलेंटेड है और ईजिली नए रूल्स में एडजस्ट हो सकता है. Trained employees are highly efficient in comparison to the untrained ones. Now the next benefit of training is that it reduces the need to constantly supervise and overlook the employees. यानी जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन कर देते हो तो आपको उनको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज नहीं करना पड़ता. लेकिन अगर आप क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आप उनको ट्रेन कर देते हो तो उनको सुपरवाइज करने की नीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. एंड दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. Next benefit is training improves job satisfaction and therefore boost morale. तो इन बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, which makes option B the correct answer to question number 5. Moving on to the next question, question number 6, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमारे पास 2 सेट्स होते हैं और सेट 1 का कोई एक एलिमेंट सेट 2 के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है और आपको बताना होता है कि कौन सा एलिमेंट दूसरे सेट में कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है. सो इन द फॉलोइंग 2 सेट्स, set 2 mentions the description of the word given in set 1. Match the 2 sets. तो यहाँ पे 2 सेट हैं, set 1 और set 2. यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है जिनका करेक्ट डिस्क्रिप्शन सेट 2 में है और आपको इन कोड्स को ध्यान में रखते हुए बताना है कि कौन से वर्ड का कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है. तो एक बार सेट 1 और सेट 2 के एलिमेंट्स को रीड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले सेट 2 के एलिमेंट्स देखते हैं. सेट 2 में सबसे पहले हमारे पास है एक्ट ऑफ लर्निंग बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और अ ग्रुप ऑफ जॉब्स. नेक्स्ट है हमारे पास अ स्ट्रैटेजी फॉर पासिंग ऑन लीडरशिप रोल्स, ऑफन द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी टू एन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज. नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और लास्ट में हमारे पास ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. सेट 1 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है सक्सेशन प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंट्रोलिंग. तो एक बार अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कि जो नीचे हमारे पास कोड्स हैं इनमें से कौन सा कोड इस क्वेश्चन का सही आंसर है. So the correct answer to question number 6 is option C. तो आइए एक बार इन चारों टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सक्सेशन प्लानिंग की.
सक्सेशन प्लानिंग में हम लीडरशिप रोल्स या फिर कंपनी की ओनरशिप को दूसरे एम्प्लॉयज़ या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को पास ऑन करते हैं, क्योंकि जो आज कंपनी का हेड है वो हमेशा तो नहीं रह सकता, वो रिटायर भी होगा, उसे कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो उसकी एब्सेंस में या फिर उसकी रिटायरमेंट या फिर डेथ के बाद कंपनी के ऑपरेशंस को उसी तरह से कैरी आउट कर सके। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट प्लानिंग. It ensures that business continue to run smoothly even after the company's most important employees retire or leave the company. अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में हम एक इंडिविजुअल को वो सारी स्किल्स सिखाते हैं जो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट में हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं। सो डेवलपमेंट इज ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग में हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं और जो भी डेविएशंस होती हैं उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. तो ये हमारे पास फिर से एक assertion और रीजन का क्वेश्चन है. Assertion में हमें दिया हुआ है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स. रीजन में कहा है कि द टर्म डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस बाय विच मैनेजरियल पर्सोनल learn conceptual and theoretical knowledge for general purpose. तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए. So the correct answer to question number 7 is option A, which says both A and R are true and R is the correct explanation of A. Training and development differ from each other in terms of their content and objectives. स्टाइनमेट्स ने ईयर 1969 में इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट किया था. अभी हमने ये लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि ट्रेनिंग में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल को इम्पार्ट करने पर ध्यान देते हैं जो एक स्पेसिफिक जॉब को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ का एक प्रोसेस है. सो अकॉर्डिंग टू हर, while training is a short-term process by which non-managerial personnel learn technical knowledge and skills for a definite purpose, the term development is a long-term process by which managerial personnel learn conceptual and theoretical knowledge for general purpose. तो training हमारी एक definite या specific purpose के लिए होती है और development general purpose के लिए होता है. Moving on to the next question, question number 8. Identify the incorrect statements. Statement 1 is, succession planning ensures business continuity. It also prepares the next possible successor for various duties and challenges that he might face in future if he fills up the position. In the absence of key manager, his successor has to perform the work after taking his permissions, which creates unnecessary confusions in the organization. It reduces rate of employee turnover and helps to retain competent workforce. तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कि जो नीचे ये कोड्स गिवन है इनमें से कौन सा कोड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच सेज ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो नाउ लेट्स डिस्कस द नीड ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है स्मूथ फंक्शनिंग. सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
temporary or sudden absence of key manager does not halt the activities of the organization. यानी अगर की मैनेजर किसी ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है तो उसके बिहाफ पर उसका सक्सेसर काम कर सकता है, उसे कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होने का कोई चांस ही नहीं है. सो थर्ड स्टेटमेंट जो अननेसेसरी कन्फ्यूजन की बात कर रही है वो एकदम इनकरेक्ट है. सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर्स बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. सक्सेशन प्लानिंग में हम पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे से इस काम को कौन संभालेगा. तो इस तरह से अगर हमारी की पोजीशन सडनली वेकेंट भी हो जाती है तभी भी हमारा काम नहीं रुकेगा. इट डेवलप्स पोटेंशियल एम्प्लॉयज़. सक्सेशन प्लानिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करती है. एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर. सक्सेशन प्लानिंग से एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनके करियर और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, एंड दिस रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड हेल्प्स टू रिटेन कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स. अब सक्सेशन प्लानिंग की इन नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम इजीली ये बात कह सकते हैं कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी इनकरेक्ट है और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट हैं. हेंस द आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विच सेज ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ये हमारे पास फिर से एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. मैच द फॉलोइंग कंटेंट्स इन सेट 1 to their related contents in set 2. तो पहले एक बार set 1 के contents पढ़ते हैं. The part of management which is concerned with people at work and with their relationship within an enterprise. Next है the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibilities of a specific job. The process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. Fourth one is a management tool that helps managers monitor and evaluate employees' work. अब सेट 2 की बात करते हैं. तो सेट 2 में हमारे पास है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जॉब एनालिसिस, HRM एंड रिक्रूटमेंट. तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कि जो नीचे ये कोड्स गिवन है इनमें से कौन सा कोड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. सो नाउ लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो अब देखते हैं कि हमने सेट 1 और सेट 2 के कंटेंट्स को किस तरह से मैच किया. सबसे पहले है द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद पीपल एट वर्क एंड विद देयर रिलेशनशिप विद इन एन एंटरप्राइज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट की बात करते हैं. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने मैच करी है जॉब एनालिसिस के साथ. जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. जॉब एनालिसिस में हम जॉब के कंटेंट्स को एनालाइज करते हैं कि जो भी पर्सन उस जॉब को परफॉर्म करेगा उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसे कौन सी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है. Next is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. तो अभी हमने ये पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहां हम मैक्सिमम पॉसिबल कैंडिडेट्स को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोजीशंस पर अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट टूल that helps managers monitor and evaluate employees' work. So this is performance management. ये employees और supervisor के बीच का एक continuous communication process है जिससे वो organization के objectives और future plans discuss करते हैं.
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को चेंजिंग नीड्स के साथ डेवलप करते रहें. Moving on to the next question, question number 10. Identify the correct statements. Statement 1 is, job analysis is the process of identifying and determining in detail contents of a particular job. Next statement is, job description is a written statement containing complete information about what all a job involves. Third statement says, job specification provides particulars about capabilities that an individual should possess to perform the job efficiently. तो यहाँ पर कुछ कोड्स गिवन है और इन कोड्स में से आपको अपना आंसर मार्क करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट एकदम सही है. So now let's discuss the correct answer to question number 10. So the correct answer is option C, which says all of the above. That is, all the three statements given in the question are correct. So now let's discuss these three statements. सबसे पहले बात करते हैं जॉब एनालिसिस की. जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में हम जॉब के कंटेंट्स को एनालाइज करते हैं कि जो भी पर्सन उस जॉब को परफॉर्म करेगा उसकी क्या ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स और स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है. अब बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की. जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट है विच इंक्लूड्स जॉब टाइटल, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू द जॉब, working conditions, reporting relationships, tools, machines and equipments to be used, and relationships with other positions. तो basically job analysis एक particular job की in-depth examination और evaluation है, and job description is a document indicating what a job covers. अब बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की. Job specification provides particulars about capabilities that an individual should possess to perform the job efficiently. तो job specification हमें ये बताता है कि एक specific job को perform करने के लिए एक individual की educational qualification क्या होनी चाहिए, उसे कितना experience होना चाहिए, training required for the job, appropriate skills, knowledge and abilities. So thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.